So let's begin. I'll now invite Amrita Patwardhan, who's the Head of Education Team at Tata Trust, to take the event forward. Thank you, Nidhi. It's really wonderful to see a room full of people interested in children's literature here, despite the weather in Delhi. It's my honor to introduce Professor Krishna Kumar, who will deliver the keynote address today. One of the foremost education thinkers of our time, Professor Krishna Kumar, has extensively written on wide-ranging issues in education from a socio-historical perspective, while keeping the child always at the center. As a faculty and former head of Central Institute of Education in Delhi University, Professor Kumar has nurtured generations of students to engage deeply with issues in the field of education through research and reflective practice. As the former director of NCERT, National Council for Education, Research and Training, he led development of position papers and the National Curricular Framework 2005 by bringing a large number of respected academicians and practitioners together to articulate a curricular vision for child-centered and constructivist education for all children guided by the constitutional framework. Professor Kumar's contributions to the field are many and varied, but I wish to call out a few today. I believe his contribution in developing education, especially elementary education, as a distinct field of study through his scholarly work and contribution in designing the first of its kind 4-year bachelor program in elementary education, BLEd, has had a very significant role in shaping the field of elementary education as we understand it today. He has chosen to write consistently, almost tirelessly, in newspapers on contemporary issues in education and society for a wider readership, where his writing reminds us that child's inherent need to make meaning and teachers' agency needs to remain at the center of any educational discourse, while often holding a mirror when the reality is reverse. His writings underlines that techno-managerial quick fixes, currently so very popular, are unlikely to provide any lasting solutions for educational reform in India. Thirdly, language development, role of the teacher in a classroom, and role of literature in learning to read with understanding is a topic on which Professor Kumar has engaged extensively and deeply over the last 3 decades. As a bilingual writer, his short stories and essays in Hindi, as well as few books that he has written for children, make his understanding about literature and education unique and multidimensional. I'm especially happy that Professor Krishna Kumar is here with us to deliver the keynote for Parag Utsav 2025, because Tata Trust Parag initiative, in fact, started in response to a recommendation that was made in our first strategic education plan prepared in 2005. That strategic plan was prepared by a team of experts which was led by Professor Krishna Kumar, and I was going back to that recommendation written 20 years back, which said that certain market-oriented activities need to be undertaken to energize the field of education as an economically vibrant sector. Children's literature is one such dormant commercial activity pertaining to children where standards of production and efficiency in distribution are poor. Hence, quality, pricing and availability needs attention, where he invited philanthropic foundations like the Trust to work on. And that kind of planted the seed of the work that we started 20 years back. So starting by supporting a few non-profit publishers in developing children's books in different Indian languages, Parag's work gradually forayed into addressing interconnected but important issues of professional development of librarians and library educators, professional development opportunities also for illustrators in partnership with Eklavya and Iktara, and several other partners, many of whom are here.
A lot of effort has gone into finding ways in which school libraries and community libraries can be activated so they become spaces where children can connect and deeply enjoy literature in all its forms. And finally, our effort to celebrate a lot of work that is happening and the creators who are dedicatedly working in this space, our recognitions are part of that. Nurturing reading culture in our society is a complex and an uphill task. We know it is possible to do this only and only if all of us work together and we are able to invite many more of us to join this journey. And what better way to sort of bring together a pool of illustrators, authors, educators, librarians, to be teachers in form of student teachers, than sort of all of us coming together to reflecting on what next. So as we look ahead, as someone who contributed to getting it all started, we could not have asked for a better speaker to set the tone for Parag Utsav 2025 than my dear teacher, Professor Krishna Kumar. कोई बात नहीं, हाँ मंगा दीजिए। बहुत शुक्रिया अमृता। साथियों, पराग आज की एक बहुत बड़ी पहल है और उसका ये दूसरा उत्सव है। इस अवसर पर आपने आप सबके बीच मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ये एक नई पहल है, लेकिन एक शब्द के तौर पर इसकी विरासत बच्चों के संदर्भ में कम से कम मेरी पीढ़ी के लोगों के लिए कुछ और ही है। 1958 में जब पराग पत्रिका शुरू हुई तो कामिनी कौशल उसमें एक स्तंभ लिखती थी जिसका नाम था चाट पानी। कामिनी कौशल अभी हाल में ही कोई महीना या 2 महीने पहले 98 वर्ष की उम्र में गुजर गईं। ये कॉलम अपनी तरह का एक विशिष्ट कॉलम था और 1959 में जब चीन ने तिब्बत में अतिक्रमण किया और दलाई लामा ने वहाँ से भागकर भारत में शरण ली, तो कामिनी कौशल उनसे मसूरी में मिली, एक युवा दलाई लामा जो आज 90 वर्ष के हो चुके हैं। और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं पत्रिका में ये लिखती हूँ, ये पूरा कॉलम है। कॉलम क्या था? वो कोई 5-7 पन्ने का एक हिस्सा होता था, चाट पानी। तो उसमें तरह तरह की सामग्री होती थी, कहानियाँ, कुछ टिप्पणियाँ, बच्चों के पत्र, कविताएं इत्यादि। उसके लिए उन्होंने दलाई लामा से अनुरोध किया कि आप बच्चों के लिए एक संदेश लिखिए। तो दलाई लामा ने कोई पूरे पन्ने का संदेश उनको लिख कर दिया, जो उन्होंने प्रकाशित किया और उसके साथ उनकी तस्वीर थी। अब दलाई लामा को उस ज़माने में भारत में बहुत कम लोग जानते थे। हम जो बच्चों का संसार था उसमें तो उनकी कोई उपस्थिति ही नहीं थी। लेकिन जिन शब्दों में दलाई लामा ने उस उम्र में, मेरा ख्याल है उस समय वो शायद सिर्फ 24 या 25 वर्ष के रहे होंगे, जिन शब्दों में उन्होंने हम लोगों को आने वाली दुनिया का सामना करने के लिए तैयार किया, वो शब्द अभी भी दिमाग में गूंजते हैं। किस कारण से वो स्तंभ बंद हुआ, वो भी एक रहस्य था जो बाद के वर्षों में आज तक आते हुए जब अखबार पढ़ता हूँ तो कई रहस्य सामने आते हैं। ऐसा ही वो रहस्य था कि 1960 की शुरुआत में पराग ने एक टिप्पणी छापी कि इस अंक से कामिनी दीदी से तुम्हारा संबंध विच्छेद हो रहा है। मैंने पहली बार ये शब्द तभी सुना था, विच्छेद,
और था एक भविष्यवाणी थी कि हम अपने जीवन में विच्छेद ही विच्छेद सुनेंगे। पहले संधि विच्छेद पढ़ा, फिर उसके बाद लोगों में विच्छेद हुआ, परिवारों में हुआ, इत्यादि। उस शब्द से मेरा परिचय चाट पानी के संदर्भ में ही हुआ था, इसलिए आज पराग उत्सव के अवसर पर ये बात याद करना इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि शब्दों का अपना एक परिचयात्मक इतिहास हर व्यक्ति के जीवन में होता है। कब उसने ये शब्द किसके मुंह से सुना, बचपन में या उसके बाद, कब किसी ने चिट्ठी में उसका ऐसा प्रयोग किया कि वो दिल में या दिमाग में उतर के बैठ गया, ये आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, भले ही उसका साहित्य से कोई संबंध ना हो, तो वो शब्दों के जरिए ही अपने परिचितों को, प्रियों को, दुश्मनों को याद करेगा। उसने मुझसे ऐसा कह दिया था, तो वो शब्द की स्मृति से पहचानता है कि वो व्यक्ति मेरा अहित चाहता था या ये व्यक्ति मुझसे स्नेह करता था। शब्द की यह महिमा बच्चों की दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण है, ये बात केवल बाल साहित्य की मदद से समझी और समझाई जा सकती है। ये पहल जो पराग ने की है कि हर वर्ष श्रेष्ठ बच्चों के लिए लिखी गई श्रेष्ठ पुस्तकों का चयन और उनका एक सार्वजनिक सम्मान करना, ये अपने आप में आज के समय के लिए एक बहुत एक बड़ी पहल है, बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इसके अलावा जो तरह तरह के प्रकाशनों को, संस्थाओं को मदद देने का सिलसिला है, उस सब के भीतर ये विचार छिपा हुआ है कि बाल साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ मानक स्थापित हों, जिससे कि हम समझ सकें कि कौन सी किताब बेहतर है, क्यों बेहतर है, दूसरी किताब उतनी अच्छी क्यों नहीं है। ये काम एक तरह से हमारे देश में जो संस्थाएं इसके लिए नियुक्त थीं उन्होंने नहीं किया, या किया तो बहुत आधे अधूरे भाव से करके फिर छोड़ दिया, क्योंकि ये एक सतत काम है कि हम प्रकाशनों की भीड़ में अध्यापकों को, प्रधान अध्यापकों को, माता पिताओं को, बच्चों को कुछ ऐसे मानक दें जिनकी मदद से वो स्वयं तय कर सकें कि ये किताब भले ही कितनी आकर्षक छपी है या कितने ही बड़े प्रकाशक ने छापी है, लेकिन ये क्या एक ऐसे स्तर की है कि मैं इसको खरीदूं, मैं इसको पढूं। ये काम पराग कर रहा है और बहुत महत्वपूर्ण काम है ये, और इसलिए मैं उनको आज इस दूसरे पराग उत्सव के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज बाल साहित्य के 3 संदर्भों की बात आपसे करनी है मुझे। ये 3 संसार हैं, आप कह लीजिए, या 3 पर्यावरण हैं जो बाल साहित्य का के ऊपर, जैसे दिल्ली में कोहरा रहता है उसका शासन रहता है, इस तरह से इन 3 पर्यावरणों के घेरे में बाल साहित्य होता है। स्वयं बाल साहित्य क्या है, इसकी परिभाषा कैसे की जाए, कौन सी चीज़ बच्चों के लिए लिखी गई है, उसकी पहचान कैसे की जाए, ये तमाम सवाल एक तरह से एक स्थायी प्रश्न हैं इस क्षेत्र के, और कोई ऐसा चिंतक या कि आलोचक नहीं हुआ है जिसने इनका एक सम्यक उत्तर दे दिया हो। पश्चिम में या हमारे देश में या कहीं भी प्रयास रहते हैं और तरह तरह की बहसें रहती हैं कि बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य क्या है और क्या साहित्य के संदर्भ में उसको रखा जाए। जैसे हम ये अंतर करें कि ये बड़ों का साहित्य है, ये बच्चों का साहित्य है, या साहित्य राशि का ही एक हिस्सा है जिसमें बहुत सी रचनाएं जो कि शायद सिर्फ बच्चों के लिए सोचकर नहीं लिखी गई थी, वो भी बच्चों की बन जाती हैं। इस तरह के प्रश्न बाल साहित्य की दुनिया में हमेशा रहे हैं और उनका अपना एक महत्व है। जब राजपाल एंड सन्स ने बहुत वर्ष पहले, कोई 60-70 साल पहले, विश्व बाल साहित्य, विश्व स्तर के बाल उपन्यासों का एक प्रकाशन किया था एक माला के रूप में, तो काफ़ी बड़ी घटना थी और उनका संक्षिप्त रूपांतर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। रॉबिन्सन क्रूसो या रॉबिन हुड या एलिस इन वंडरलैंड या इस तरह की कई क्लासिक्स, मैन इन द आयरन मास्क,
ब्लैक फ्लावर इत्यादि, इस तरह के कई क्लासिक्स बच्चों के लिए हिंदी में आए, और वो भी बड़ी सुंदर प्रांजल हिंदी में, बहुत सीधे साधे लेकिन कुछ अभिव्यक्त करने वाले चित्रों के साथ। अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी, और इस बात का तकाजा आज ये देती है ये घटना कि आज की क्या परिस्थिति है, इसका अंदाज लगता है इस बात से कि ये अब उपलब्ध नहीं है, या ये बाज़ार से बाहर हो गए हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे इंटरनेट पर, तो आपको इनमें से एक दो किताबें बहुत महंगे मूल्यों पर मिलेंगी, जो किसी के पास बची हुई प्रति है वो बेच रहा है। इस सब के संदर्भ में ये तीन संसार मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए बहस का मुद्दा बनाना चाहता हूँ, जो बाल साहित्य के इर्द गिर्द हैं। तो इनमें से पहला संसार तो निश्चित रूप से शिक्षा का संसार है, शिक्षा का पर्यावरण है, जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भी है, और एक बड़ा भारी, एक आज की शब्दावली में कोई नहीं कहता कि अवरोध है, आज की शब्दावली में तो कहा जाता है चुनौती है। लेकिन ये चुनौती है कि अवरोध है, क्या है ये? निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आप जैसे लोग जो कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इसमें काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का जो जगत हमारे इर्द गिर्द है, जिसमें हमारे बच्चे रोज़ घंटों बिताते हैं, जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बिताते हैं, बाल साहित्य को उसका कौन सा रूप प्रभावित करता है। जब 80 के दशक में, पिछले शताब्दी में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भारत सरकार ने शुरू किया, तो एक नई सी उम्मीद बनी थी कि अब हर स्कूल में कुछ साहित्य पहुंचेगा, और ये साहित्य शायद भाषा की पढ़ाई को फैलाएगा। और उसके तहत जब उसके बाद उस समय की 1986 की शिक्षा नीति बनी, उसमें भी ये बात उभर के आई कि बच्चे सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़कर किसी भाषा को ग्रहण नहीं कर सकते या उसकी विरासत को प्राप्त नहीं कर सकते, साहित्य उसमें मदद करता है। इसलिए हर स्कूल में बच्चों के साहित्य की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये पहली बार सोचा गया, हालांकि इसके पहले भी कई बार लोग किताबें बेचने के लिए स्कूल पहुंचते थे, और इसका अपना एक इतिहास है कि बहुत से लोग हिंदी में ऐसे हुए जो झोले में किताबें रख करके स्कूल में बांटने जाते थे या बेचने जाते थे, और उनका अपना एक कह लीजिए अपना एक व्यक्तिगत दायित्व बन जाता था कि ये वो चीज़ें लाते हैं जो और कोई नहीं देता या लाता। ये इतिहास का विषय है, लेकिन ये सरकार के स्तर पर ये पहली बार हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। पर ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन आया, बहुत सा साहित्य पहुंचा बच्चों की दुनिया में, स्कूल में, लेकिन कोई 10-15 वर्ष ही नहीं बीते थे कि वो एक तरह से विलुप्त हो गया। विलुप्त प्राय साहित्य हमारे यहाँ वैसे भी बहुत अधिक है। इतना ताज़ा विलुप्त प्राय साहित्य शायद ही किसी भाषा में मिले जितना कि हिंदी में हुआ। मुझे मालूम नहीं कि शायद भारत की कुछ अन्य भाषाओं में कुछ और समय चल गया, और मलयालम जैसी भाषा में तो काफ़ी समय चलता रहा, आज भी चल रहा है। बांग्ला में भी आप ऐसा कह सकते हैं, पर हिंदी में ये स्थिति नहीं बन पाई, और हिंदी में कुछ ही समय में फिर वही अवरोध पैदा हो गया जो कि पुराने समय से चला आ रहा था, यानी कि स्कूल के जीवन में लाइब्रेरी नहीं चल सकती ठीक से। इसका कारण सिर्फ वित्तीय नहीं है कि लाइब्रेरियन को नियुक्त करने का खर्चा सरकार नहीं उठाती है, बल्कि ये स्कूल की संरचना में, उसके ढांचे में ही निहित है कि लाइब्रेरी की पटरी पाठ्यक्रम से नहीं बनती, क्योंकि पाठ्यक्रम का विवाह बहुत पहले पाठ्य पुस्तक से अंग्रेज लोग करवा के गए थे कि पढ़ना, पाठ्य पुस्तक ही पढ़ना और कुछ पढ़ना, तो ये विवाहेतर बातें हैं, इनको सबके सामने नहीं करना। तो इसलिए आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं प्रेमचंद भी छिप के पढ़ता था, और खासकर लड़कियां ऐसी मिलेंगी जो आज वृद्ध हो चुकी होंगी, जिन्होंने सुदर्शन की कहानियां या कि प्रेमचंद की कहानियां और उस जमाने का यशपाल का साहित्य भी घर वालों से, स्कूल वालों से, सबसे छिप के पढ़ा। ऐसा क्या था बाल साहित्य में जो कि, या साहित्य में जो कि
शिक्षा के जरिए बाकायदे सामने वाले दरवाजे से नहीं घुस सकता था। अपने आप में शिक्षा का इतिहास पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही रोचक विषय है और कोई ख़ास रहस्य नहीं है। ये जो पूरा मुद्दा है, ये आपको पता है कि शिक्षा की जो दूसरी हमारे देश में सब बहुत बड़ी एक बीमारी है, एक या कह लीजिए बैसाखी है, हालांकि आज के समय में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, कि एक बैसाखी है हमारे यहाँ पाठ्यपुस्तक की, दूसरी है इम्तहान की। इन दोनों के सहारे ही हमारी ये व्यवस्था चलती है और इम्तहान के लिए पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जो पूरा सिलसिला है, ये आप सबको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानकार हैं, इशारों से ही पूरी बात समझ सकते हैं। सवाल यही है कि हम लोगों को ये जो उम्मीद हुई थी 80 के दशक में कि साहित्य की उपस्थिति जब बनेगी हर स्कूल में और प्राथमिक स्कूल में भी एक छोटा मोटा पुस्तकालय शुरू हो जाएगा, तो शिक्षा व्यवस्था का एक नया अध्याय शुरू होगा। ये अध्याय अभी भी कच्चा ही है और बहुत ज़्यादा अब चर्चित भी नहीं है। किसी और ही राह पर शिक्षा चल पड़ी है कि अब आपको ऐसे ऐसे स्कूल देखने को मिलेंगे बहुत ही गरीब इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में, जहाँ पर पैनल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, घर स्कूल के अंदर कंप्यूटर है, लेकिन बच्चे टाट पट्टी पर ही बैठ रहे हैं, मेज़ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे स्कूलों में अब ये मान लिया गया है कि अब तो किताब का एक जो ज़माना आया था वो भी चला गया और इस बीच में हमने और ऊंची छलांग लगा ली और अब ये जो छलांग है ये सीधे स्क्रीन पर पहुंचती है। इस स्क्रीन तक पहुंचाने में केवल बिल गेट्स का योगदान नहीं है, इस स्क्रीन पर पहुंचाने में सीधे सीधे हमारी अपनी सत्ताओं का, शासनों का योगदान है, क्योंकि उनकी समझ ही अब यही है कि इन पुरानी बातों में कुछ रखा नहीं है और हमें तो अगर सामना करना है दुनिया का या दुनिया के और देशों के बराबर चलना है तो छलांग लगानी होगी और ये छलांग साहित्य को एक बार फिर पीछे छोड़ देगी। तो शिक्षा का ये जो पूरा परिवेश है, इसमें चलने वाली बहसें, इसमें उठने वाले विवाद, इन सभी में बाल साहित्य की प्राथमिकता और बाल साहित्य के संग्रह की स्कूल में जगह कोहरे में ढक गई है। आप अगर याद भी दिलाएं तो उसके लिए नई तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं। वैसे भी स्कूलों में बाल साहित्य का पहुंचना इतना आसान नहीं था, उस समय भी नहीं था। कौन से प्रकाशक की कितनी किताबें खरीदी जाएंगी, ये सारे विवाद उस समय से चल रहे हैं। और उसके अलावा ये भी कि ये जो पहुंचाई जाती हैं, ये एक बार स्कूल में पहुंचने पर कहाँ रहती हैं, इनका क्या उपयोग होता है। सैकड़ों कार्यशालाएं सरकारों ने की, लेकिन जो धुरी थी शिक्षा व्यवस्था की वो अपनी जगह से नहीं हटी। जहाँ तक बच्चों का सवाल है शिक्षा व्यवस्था में, उनके लिए भी ये वाला संदेश आज भी शिक्षा में प्रमुख रूप से विद्यमान है कि ये जो किताबें अगर पढ़ते हुए दिखते भी हो तो इस बात की कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होगा। पढ़ना तो वही है जो किसी परीक्षा में काम आएगा। और अब परीक्षा शब्द भी थोड़ा सा घिस गया है, क्योंकि अब लगातार परीक्षा होती है। पहले ये महत्वपूर्ण घटना होती थी कि हाँ साल में एक बार होती है, फिर 2 बार होने लगी, फिर 3 बार होने लगी, अब हर हफ्ते होती है। तो ऐसा मेहमान जो हर हफ्ते आए, आपको पता है कि अपनी प्रमुखता खो देता है। इसलिए अब ये जो नया टेस्टिंग का एक पूरा सिलसिला है, रेजीम है, इसमें और भी नई स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि शब्द, इस चर्चा ही शुरू हुई थी शब्द के संसार से, शब्द की व्यंजना के संसार से, संबंध विच्छेद से। मैंने ये प्रसंग लिया था, कामिनी कौशल ने जब ये स्तंभ बंद किया तो परा के संपादक ने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि इस अंक से तुम लोगों का विच्छेद हो रहा है उनसे। अब ये जो स्थिति है कि आप एक शब्द से एक पूरा संसार समझते हैं, रचते हैं या उसकी प्रमुखता को पहचान पाते हैं, वो अब स्थिति नहीं रही, क्योंकि अब एक उन्हीं चीज़ों का महत्व रह गया है जो MCQ में काम आती हों कि भाई ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही लगता है, इसकी चिंता छोड़ो कि कैसे पता लगा तुम्हें। और इसका अभ्यास करवाने वाली संस्थाएं हैं, स्कूलों में ही शुरू हो जाता है ये अभ्यास। और ये जो पूरा सिलसिला है बच्चों की इस तरह से
हफ्ता दर हफ्ता आंकने का कि वो कहाँ पहुँचे, उनकी कितनी प्रगति हुई, ये सब पढ़ने की संस्कृति से एकदम विपरीत दिशा में जाने वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। महाकवि बच्चन ने इसको संक्षेप में बड़ी गहरी व्यंजना दी थी। कलकत्ते की ओर चले थे, पहुंचे जाकर जैसलमेर, भेद बहुत दिन बाद खुला है, ऊँट रहा है खींच नकेल। इस तरह से उन्होंने इसको, इस तरह की बहुत सी और स्थितियों का विद्रूप हमको समझाया था। तो ये सब आज याद करने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जब हम बाल साहित्य के प्रचार प्रसार, उसकी गुणवत्ता या उसके चयन के स्तर, इन सब पर विचार कर रहे हैं और एक तरह से उत्सव का माहौल है जिसमें हम ये कर रहे हैं, हमको ये याद रखना है कि ये पर्यावरण जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हम इन सब संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर्यावरण में जो थोड़ी बहुत ऊष्मा आई थी वो ऊष्मा आज नहीं है। और एक जाड़ा है, जाड़े का अर्थ पहले तो होता था धूप होगी या हम उसमें बैठ करके तिल के लड्डू खाएंगे। अब जाड़े का अर्थ आपके सामने बाहर है। सारी रात मेरी ट्रेन कोई 6 घंटे लेट रही, इसलिए मुझे तो उसका अर्थ बहुत अच्छी तरह से पता है, आपको भी अंदाज ही होगा। तो ये वाला जो वातावरण है, इसको भूले बगैर या केवल साहित्य की रचना, उसके चित्रों की रचना, इस सब में अपना मन रमा कर हम बहुत लंबा कोई रोमांटिक स्वप्न नहीं देख सकते। हमें पहचानना होगा कि इस जगह जहाँ ये शिक्षा का संसार है, इसकी बेड़ियाँ हमको बहुत तेज़ नहीं दौड़ने देंगी। और इसलिए हमारी एक जो भी इसको नाम दें आप, लड़ाई का नाम दें, संघर्ष का नाम दें या चिंता का नाम दें, उसके क्षेत्रों में ये प्रमुखता से जो पहला क्षेत्र है ये शामिल है। और इसको बाल साहित्य को उस दुनिया में पहचानने और उसकी पहचान बनवाने के लिए और क्या क्या हमें करना चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ, ये सब उन्हीं चिंताओं के साथ होना चाहिए जो कि हम बाल साहित्य के नए मानक तय करते समय सोचते हैं। अब आइए एक दूसरे संसार पे विचार करें। वो दूसरा संसार है बाजार का। अमृता ने जब मेरा परिचय दिया उस समय उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि ये जो शब्द है बाजार, हमारे जैसे लोग जो कि अपने को थोड़ा सा दुनिया से आगे ही मानते हैं, कई बार सोचते हैं, खासकर ये जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, यहाँ तो केवल इतिहास गढ़ने वाले आते हैं। तो ऐसे समय में ये बड़ा मुश्किल है कहना कि भाई बाजार भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस सिर्फ बाजारवाद से ही परहेज का मामला नहीं है। और ख़ासकर जब आप बच्चों के साहित्य की बात करते हैं तो बाजार से परहेज या बाजार से दूर रहना या बाजार की कई चीज़ों को कुछ घिन के साथ देखना बहुत उचित नहीं लगता। मेरा अक्सर बाल साहित्य में इस समय सबसे सक्रिय संस्थाओं से ये विवाद चलता रहता है कि इस समय हमारे पास जो श्रेष्ठतम बच्चों की पत्रिकाएं हैं उनमें कोई विज्ञापन नहीं दिखाई देता, कुछ सूनापन लगता है कि ये बाजार से बाहर की चीज़ें हैं। और सच भी है कि जब आप किसी गैर सरकारी संगठन, इसके लिए जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, अंग्रेजी वाला तो बहुत ही पिट गया है, एनजीओज, या कि हम लोग स्वैच्छिक संस्थाएं कहें, या बाल साहित्य के प्रति समर्पित जो इस किस्म के अव्यावसायिक प्रयास हैं, ये बाजार के स्पर्श से भी एक तरह से घिन महसूस करते हैं या दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाजार के नियम, बाजार की मांगें, ये सब इतनी दूर चली गई हैं हमारी दुनिया से, उस दुनिया से जिसमें कहीं से कोई ग्रांट आती है या किसी ने हमारा जिम्मा उठा लिया है हमको जिंदा रखने का। जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो वही समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि अगर आप अपने स्वास्थ्य का जिम्मा किसी अस्पताल को दे दें या किसी डॉक्टर को दे दें तो जो समस्याएं पैदा होंगी उसी तरह की ये समस्याएं हैं कि हमने अगर अच्छा बाल साहित्य रचने, उसको सुंदर ढंग से प्रकाशित करने, उसका प्रचार प्रसार करने, इस सब का जिम्मा पूरी तरह से किसी दान देने वाली संस्था के प्रति, जिसका खुद एक अव्यावसायिक चरित्र है, उसको दे दिया है और हम इसको व्यावसायिक दुनिया से दूर रखना चाहते हैं। तो व्यावसायिक दुनिया से दूर रखकर ये पौधा बहुत बढ़िया आकार के फूल तो देगा, लेकिन इन फूलों में उस तरह की खुशबू नहीं होगी
जो कि पुरानी पराग या उसके और पीछे चलें, बाल सखा, बालक, शिशु, खिलौना, इन दुनियाओं में थी। ये विरासत हिंदी की ही नहीं है, लेकिन हिंदी की भी है। हिंदी एक बड़ा समृद्ध इतिहास हमें देती है, जो आज बहुत से लोग भूल सा गए हैं कि बाल साहित्य की, पत्रिकाओं का जगत हिंदी की दुनिया में 20वीं सदी के शुरुआत में जितना समृद्ध था, उतना आज नहीं है। समृद्ध किस अर्थ में था? नंदिनी चंद्रा ने इस विषय पर जो जेएनयू में शोध किया, उसी से उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि उसका फैलाव भी उभरते हुए मध्यम वर्ग में पूरी हिंदी पट्टी में था, और वो दुनिया ही ऐसी थी जिसका प्रचार करने में समाज स्वयं शामिल हो गया था। 1917 में निकली बाल सखा या 1916 में निकला बालक, इसी प्रचार या प्रसार श्रृंखला के अंग बन करके एक पूरा इतिहास रचने में समर्थ हुए। और उसके साथ साथ फिर राम नरेश त्रिपाठी की वानर और बिहार से निकलने वाली चुन्नू मुन्नू, शिशु, खिलौना, इस तरह की पत्रिकाओं ने 1920 और 1950 तक आते आते एक बहुत बड़ा एक अभियान जैसा पैदा कर दिया हिंदी जगत में। ठीक है, इनका जो पूरा इनकी जो प्रसार संख्या थी वो जनसंख्या के लिहाज से बहुत नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप उस समय की साक्षरता दर के लिहाज से देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये कैसे संभव हुआ। और उनमें छपने वाली सामग्री में उठने वाले प्रश्न, तरह तरह के बच्चों में एक विरोध के स्वरों को पैदा करना, ये केवल गांधी या नेहरू या उस समय के नेताओं की वजह से नहीं पैदा हुआ, इसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था। जब आप पुराने अंक पलटते हैं इन पत्रिकाओं के, बहुत कम जगह ऐसी रह गई हैं जहां आप बैठकर इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद छपी हुई पत्रिकाएं भी अब आसानी से उपलब्ध नहीं होती, तो पुरानी तो और भी ज़्यादा मुश्किल हैं। तो हम पहचान पाते हैं कि उस समय की परिस्थितियों में बच्चों के साहित्य और बच्चों की पत्रिकाओं का बाजार बना, फैला, और क्यों उसका अवसान हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा समाजशास्त्रीय प्रश्न है। कभी कभी लगता है कि शायद जो सोवियत संघ से उस समय बहुत सस्ता रंगीन साहित्य आना शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर भारत के शहरों कस्बों में पहुंचा, क्या उसकी प्रतियोगिता में वो साहित्य ज़्यादा नहीं बढ़ पाया जो कि आज़ादी के पहले बहुत लोकप्रिय होता था? या कोई और कारण थे? कई कारण शायद थे जिनकी पड़ताल अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना उत्कर्ष हुआ और उसके बाद इतना अपकर्ष हुआ। अपने आप में बड़ा रोचक लेकिन थोड़ा सा दुखी करने वाला सवाल है। कुछ एक पत्रिकाएं उस माहौल में भी टिक सकी हैं। दक्षिण से छपने वाली चंदा मामा आज भी उपस्थित है, हालांकि उतनी उपस्थिति उसकी इतना गौर करने लायक नहीं रह गई है कि हम उसको ध्यान से देख पाएं, लेकिन एक समय में चंदा मामा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी और जिंदा है। यही सोच के आश्चर्य होता है कि कैसे ये जिंदा रह गई जबकि बाकी चीज़ें खत्म हो गई। यहाँ तक कि पराग, जिसका जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया, वो भी धीरे धीरे 1970 के दशक के अंत तक आते आते धराशायी हो गया। व्यावसायिक ढंग से चलने वाली ये पत्रिकाएं या व्यावसायिक रूप से चलने वाले प्रकाशक बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सके, वरना ऐसे अनेक प्रकाशक हिंदी में हुए, अन्य भाषाओं में भी हुए, पर हिंदी में उनका अपना संसार सिकुड़ता चला गया। और इसके बाद ये जो नया संसार बनना शुरू हुआ है, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, इसलिए केवल दोष उनको नहीं दे रहा हूँ जो इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि उनसे मेरा झगड़ा इसीलिए होता ही रहता है कि हम इस संसार को बाजार का अंग क्यों नहीं बना पा रहे हैं। क्या ये सिर्फ मामला बाजार की नई परिस्थिति का है, या ये इस बात का है कि हम वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, इसलिए हम उस प्रतियोगिता में नहीं पड़ना चाहते जो कि बाजार में टिकने के लिए ज़रूरी होती है, और इसीलिए हम इतने महंगे कागज़ पर ये अपनी किताबें छाप पा रहे हैं, जिनको हम देखते हैं हमारे कई संगठनों से अब बहुत अच्छी सुंदर किताबें छप रही हैं, मोटे कागज़ पर बहुत अच्छे चित्रों के साथ, बहुत अच्छी तरह से
प्रबंधित उसका लेआउट है, सब कुछ है। यानी कि उसमें जितना निवेश संभव है उतना निवेश किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी और थोड़ा बहुत गर्व पैदा करने वाली बात है कि हमारी भाषा में ऐसी किताबें अब छप पा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर ये किताबें बाजार में उतरें तो शायद इनकी प्रतियोगिता बड़ी मुश्किल होगी। इतने महंगे निवेश के साथ, इतने बड़े निवेश के साथ उतारना इनको मुश्किल पड़ेगा। अगर आप सरकार के संगठन को देखें, नेशनल बुक ट्रस्ट, तो उनकी समस्याएं भी समझ में आती हैं। ठीक है, उनकी कई किताबें लाखों में बिकती हैं, लेकिन वो बिक्री कितनी वास्तविक होती है, जब आप ये सोचना शुरू करते हैं तो एहसास होता है कि हाँ, वो किताबें पहुंच जाती हैं, पर पढ़ी जाती हैं कि नहीं, पहुंचाई किस तरह जाती हैं, कि वो सरकारी खरीद के सिलसिले में सबसे ऊपर रहती हैं, क्योंकि वो सस्ती भी हैं और सरकार के ही एक प्रतिष्ठान ने उनको प्रकाशित किया है। इन सब के बीच में कहीं चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने अपनी जगह बनाई थी, जो कुछ व्यावसायिक भी था और आज भी है, और इसीलिए कागज़ की मोटाई हमेशा थोड़ी सी कम रखता है। उनकी किताबें देखकर लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेश करने से बचना चाहा है, जिससे कि मूल्य भी कम रहे। पर उनकी पहुंच भी बहुत हद तक सरकारों पर ही निर्भर बनी हुई है। उनका सिलसिला, उनके प्रचार प्रसार का, उनकी उपलब्धता का बहुत सीमित बना हुआ है। अगर आपको दिल्ली में ही चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की कोई किताब खरीदनी हो, और वो भी एक क्लासिक हो, तो भी आपको बहादुर शाह जफर मार्ग के ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे दरियागंज तक जाएंगे, वहां से यू टर्न करके आएंगे, तब आप परली तरफ वाली जो उनकी दुकान है वहां पहुंच पाएंगे। तो कोई भक्त ही होगा बाल साहित्य का, श्रद्धालु ही होगा, जो इतना प्रयास करके उस तीर्थ स्थान पे पहुंचेगा जहां शंकर पिल्लई ने यह कल्पना की थी कि मैं देश के हर बच्चे के लिए साहित्य प्रकाशित करूंगा। और शंकर वीकली के द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में उस समय वास्तव में दसियों हजार बच्चे भाग लेते थे, देश भर से भेजते थे। पर आज इतनी बड़ी संस्था को भी काफ़ी मुश्किल होती है बाजार में अपनी चीज़ पहुंचाने और टिकाने के लिए। आप बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी दुकानें मुश्किल से ढूंढ पाएंगे जहां उनकी सारी पुस्तकें उपलब्ध हों। नेशनल बुक ट्रस्ट का भी ठीक यही हाल है कि वो अपने प्रकाशनों को स्वयं ही बेचना पसंद करता है, और या फिर अब जो मेला लगने वाला है उसमें अपना स्टॉल लगाता है, वहाँ पर पसंद करता है। तो यानी कि सरकार भी अपने ढंग से बाजार से बाहर है, भले ही वो बाजार की वैसे भक्त है, उसकी सारी नीतियां बाजार केंद्रित हैं, लेकिन वो बाल साहित्य के मामले में बाजार से परहेज करती है। और दूसरी तरफ वे संगठन जो कि कोशिश कर रहे हैं, बहुत सिंसियर कोशिश कर रहे हैं कि बाल साहित्य का देश भर में हर बच्चे के पास उसकी पहुंच बने, वो भी बाजार से दूर रहते हैं। तो इस पर निश्चित रूप से हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि बाजार से हमारी ये जो एक दूरी बनी हुई है, एक तरह की, इसको व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है सिवाय एक स्वास्थ्य संबंधी शब्द का इस्तेमाल किए हुए, एक तरह की एलर्जी है कि हम विज्ञापनों में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पराग में छपने से लाइफ बॉय अमर साबुन बन गया कि आज भी दिखता है, पर पराग के पिछले पृष्ठ पर इसका विज्ञापन लगभग हर अंक में छपता था। और बहुत से बच्चे आपको उस पीढ़ी के मिलेंगे जो इस बात को पराग के एक विज्ञापन से ही जान पाते थे कि दांत साफ करने का एक ब्रश भी होता है। ये 1960 में भी ये स्थिति थी कि बहुत दूर की चीज थी ये, लेकिन विज्ञापनों से, तरह तरह के बिस्कुटों का विज्ञापन, साबुनों का विज्ञापन, पूना से छपने वाली बच्चों की मशहूर अंग्रेजी पत्रिका सनशाइन में कम से कम 15 पेज, कई बार 10-15 नियमित रूप से, और विशेषांकों में तो कम 20-25 पेज विज्ञापनों की मदद से ही छपते थे, उन पर विज्ञापन होते थे। और उन विज्ञापनों से हमारी पीढ़ी बर्बाद हो गई ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हम लोगों के ऊपर ऐसा असर पड़ा उसका कि हम वही चीज़ें खरीदने लगे या हम किसी के मोहरे बन गए। हाँ, वो आज आप अगर सिद्ध करना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। विज्ञापनों से भी एक दुनिया बनती थी, खुलती थी, और हमें मालूम चलता था कि हमारे आसपास का संसार क्या, किस तरह चलता है।
या ये चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पिता या माँ इस्तेमाल करती है, वो कहाँ से आती है, क्या चीज़ है, वो क्यों खरीदते हैं, उसी को क्यों खरीदते हैं। ऐसा बहुत सा एक आप कह लीजिए कि व्यावहारिक ज्ञान बच्चों की पत्रिकाओं में विज्ञापनों से पैदा होता था। अब आप इसको अगर इन वाक्यों को आज के सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो आप कहेंगे कि एक और बिका हुआ बाल साहित्यकार इत्यादि, जो कि आज इस तरह की बातें कर रहा है, जिसको जिम्मा ये सौंपा गया था कि वो राज्य की जवाबदेही तय करे, न कि बाजार की। ये हमारे समय की नई नई व्याधियां हैं जिनकी वजह से हम ये भूल गए हैं कि बाजार ही वो संस्था है प्राचीन काल से जो कि हर ग्राहक को एक जगह लाती है और उसकी जरूरत की चीज वहां उस तक देती है। इस संस्था का स्वरूप जटिल है और आज के समय में पहले से भी कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि उस पर हावी हो जाना या उससे ऐसे मूल्य गढ़वाना ये भी अपने आप में एक उद्योग बन गया है। लेकिन हम इस संस्था को भूल ही जाएं, ये संभव नहीं है। और हमारे स्वर्गीय मित्र, जिनका आज ही मुझे अभी किसी ने याद दिलाया निधन हुआ था, अनुपम मिश्र, जो जिनके बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि वो बाजारवादी थे। उसने भी एक बार लिखा था अपने एक लेख में कि बाजार ही किसी शहर की पहचान होती है। आप जब जाते हैं किसी नए शहर में तो कहते हैं बाजार ले चलो, जरा हम देखना चाहेंगे। तो अगर बाजार ही किसी कस्बे की किसी गांव में रोज नहीं लगता है तो उस दिन जाकर जाने की इच्छा होती जिस दिन लगता था कि भाई यहाँ तो वीर बाजार दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी लगता है। तो वीर बाजार में ऐसा क्या है जो कि लोगों को एक साथ लाता है, एक प्रकार का मेला बनता है वहां पर। और वो मेला किसी के आयोजन नहीं है, किसी की का प्रायोजन नहीं है, वो मेला स्वयं लगता है। लोग अपनी अपनी जरूरतों की चीजें सस्ती से सस्ती कीमत पर खरीदने के लिए वहां पहुंचते हैं। ये कल्पना बड़ा सुख देती है, ये सोच करके कि ये किताबें जो कि 2-2, 250, 350 रुपए की किताबें आज कई गैर सरकारी संगठनों ने बहुत आकर्षक ढंग से छापी हैं। ये जब उस बाजार में पहुंचेंगी, वीर बाजार में, तो इनकी कीमत शायद केवल 5 रुपए 10 रुपए रह जाएगी। हालांकि ये कई लोगों को ये बात भी बड़ी रोमांटिक लगती है कि हम 5-10 रुपए में क्यों बेचें। ठीक है भाई, आप 20 रुपए में बेच लीजिएगा, 50 में बेच लीजिएगा, लेकिन 350 की किताब खरीदने का मौका आज के अभिभावकों के पास कम ही के पास होगा। मूल्य से महत्व भी पता लगता है कि जिसको इसका महत्व पहले से पता है वो तो खरीदेगा, कि वो 100 रुपए की हो, 150 की हो, कितने की ही हो, लेगा। लेकिन जिसको इसका स्पर्श नहीं हुआ है, पिछले 100 वर्षों के लंबे प्रयास और संघर्ष के बावजूद उसको अंदाज नहीं लगा है कि ये चीज हमारे बच्चे के लिए जरूरी है, ऐसा माता पिता न तो इतने पैसे बच्चे को देगा कि वो खुद खरीद ले और न ही वो स्वयं उसके लिए खरीद कर लाएगा। ये एक सीमित हमारी जो एक दुनिया है जिसको हमने खुद रचा है, इसलिए उसको एक विश्वामित्री दुनिया कहने से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कोई इसी पर आक्रमण ना कर दे कि हमको विश्वामित्र घोषित कर दिया। पर यह है उस तरह की रचना कि ये एक सीमित सी रचना है जिसमें हम एक दूसरे को पाकर खुश होते हैं। आज सुबह मैं इतने लोगों से मिलकर इतना खुश हुआ हूं क्योंकि ये सब लोग वो हैं जो कि इस बात का महत्व पहले से समझते हैं और ये भाषण सुनने के लिए एक तरह से केवल प्रेम पूर्वक आए हैं। हालांकि उनको ये सब बातें पता है, पर यही बात है जो कि अमृता थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र कर रही थी कि बाजार से जुड़ने की तरकीबें सोचना और बाजार में अपनी उपस्थिति बना करके बाल साहित्य की किताबों के मूल्यों को उस हद तक ले आना, घटा सकना जहां पर वो सहज रूप से खरीदी जा सकें और ध्यानाकर्षण के लिए इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़े कि जब इतने बढ़िया रंगों में चित्र होंगे तभी बच्चे का ध्यान उधर जाएगा। ये सोचने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। कोई अच्छी कहानी सरल चित्रों के साथ भी छपी होगी तो बिकेगी अगर वो बच्चे की पहुंच के भीतर होगी या उसके माता पिताओं की पहुंच के भीतर होगी। ये संसार सिर्फ शहरों कस्बों से मिलके नहीं बना है, गांव के स्तर पर भी हमको अगर कभी पहुंचना है इस नई वाली शताब्दी में तो पिछली शताब्दी के विचारों से भी संघर्ष करना होगा। उन्हीं विचारों में ये विचार था कि हम इस दुनिया में विज्ञापन की, प्रचार की या बाजारी किस्म की बातें
नहीं आने देंगे। और इसलिए आप अगर गौर करें तो गहराई से पढ़ने वालों को पता लग जाएगा कि एक ख़ास तरह की रचनाओं का एक सिलसिला बन गया है जिनके रचनाकारों को इस बात की चिंता नहीं है कि वो पढ़े जाएंगे कि नहीं। केवल ये है कि हाँ, वो एक नए तरीके से लिखते हैं और इसलिए उनको सुनने वाला, पढ़ने वाला परेशान नहीं करता। ये विचार परेशान नहीं करता कि मेरी बात को कोई समझेगा, उसका आनंद लेगा, केवल इसलिए आकर्षित होगा कि उसको अच्छा लग रहा है। ऐसा बहुत सा साहित्य आज हमारे आसपास पहुंच गया है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसी किताबें पहुंच गई हैं जो बाजार से नहीं निकली हैं, जो हैं उनमें से कुछ अच्छी भी हैं, सुंदर भी हैं, सब तरह की हैं, जो सीधे सीधे स्कूल में पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंच जाती हैं? इसी तरह से पहुंचती हैं कि वो उनका एक अलग ही, उनके लिए एक ऐसा दरवाज़ा बना दिया गया है जो बाजार से होके नहीं गुजरता। आप वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ पर वो पहुँच भी जाएंगी, बट भी जाएंगी, लेकिन बट करके, बांट करके, वितरित करके कोई साहित्य कभी समाज के स्तर पर कोई बड़ी एक मुहिम पैदा नहीं कर पाता है। चाहे बड़ों का साहित्य देखें, और यही बात बच्चों के साहित्य पर लागू होती है। अब आइए तीसरे सबसे मुश्किल संसार की ओर बढ़ें, समय भी बहुत हो रहा है, और वो तीसरा संसार है बचपन का संसार। हम जो अब बच्चे नहीं हैं पर बच्चों के प्रति चिंतित हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हमारे लिए बचपन या तो एक स्मृति है या एक कल्पना है। बचपन ठीक ठीक कहाँ है, क्या है आज, इस बात को प्राचीन काल से दार्शनिक, चिंतक इत्यादि समझने की कोशिश करते रहे हैं कि ये एक बहुत तेजी से गुजरती हुई जीवन की अवस्था है जिसकी स्मृति जब बाद में आती है तो अपने साथ बहुत सी वो चीजें नहीं लाती जो उस समय रहती थी हमारे दिमाग में, और जिसकी कल्पना उन स्मृतियों से मिलकर बनती है, चाहे कितना ही बड़ा लेखक हो। एक ऐसी ये जगह है जिंदगी की जिसके बारे में प्लेटो जैसे दार्शनिक ने कहा था कि बच्चा तो हमारी दुनिया का विदेशी है, हम उसको आसानी से समझ नहीं सकते, उसकी वो भाषा भी अलग है, उसकी सोच भी अलग है, हम केवल अंदाज लगा सकते हैं। और अंदाज तो आपको पता ही है कि बच्चों को लेकर कितनी बार गलत सिद्ध होता है। एकदम गोद में जब बच्चा होता है उस समय भी गलत सिद्ध होता है कि आप सोचते हैं कि वो इसलिए रो रहा है, वो किसी और चीज़ के लिए रहा है। या आप थोड़ा सा बड़ा होने पर भी बहुत सी बातें बच्चे 5-7 साल की उम्र में ही समझ लेते हैं कि बड़ों को ये बताना बेकार है क्योंकि वो उनके दायरे की बात ही नहीं है। और इसलिए एक अलग रचना जगत बच्चे तैयार करते हैं अपने बराबर के लोगों के साथ, और वो किशोरावस्था तक आते आते इतना मजबूत हो जाता है कि कई बार माता पिता चौंकते हैं कि अरे हमारे बेटे ने, हमारी लड़की ने ये किया, कैसे हो सकता है, हम तो उसको रोज मिलते हैं इत्यादि। तो ये जो पूरा दौर है जन्म से लेकर के और 16-17 साल की उम्र का, इसको लेकर इतना आश्वस्त भाव कोई लेखक, कोई चित्रकार लेकर नहीं चल सकता कि मैंने बचपन को समझ लिया, और खासकर वो बचपन जो कि आज मैं नहीं जी रहा हूं, आज कोई और जी रहा है, और मेरा उससे संपर्क केवल अपनी स्मृतियों या मनोविज्ञान की किताबों या मेरी अपनी उर्वर कल्पना के जरिए है। इस पूरे प्रसंग में अगर विनय का कोई स्थान बनता है तो वही एकमात्र मूल्य है जो हमें प्रेरित कर सकता है कि हम बचपन को नहीं समझते, और इसलिए बचपन की खुशियों, बचपन की चिंताओं, इस पूरे हिस्से पर अगर हम मान के चलें कि हाँ एक कोहरे की चादर पड़ी ही रहेगी, चाहे आप कितना आत्मीय संबंध बनाएं, तो फिर शायद एक संबंध बनना शुरू होगा। और वो संबंध जब आप कोई अच्छे कवि की कविता पढ़ते हैं, किसी अच्छे कहानीकार की कहानी पढ़ते हैं, तो महसूस होता है कि इस आदमी ने वो संबंध बनाया था। वो संबंध स्कूल में पहुंचकर किस तरह टूट जाता है, इसकी भी आपको कई ऐसे प्रसंग, आपके इसकी कई मिसालें आपको स्कूल में चली पहुंचने पे मिल जाएंगी।
हिंदी साहित्य के, हिंदी बाल साहित्य के बहुत बड़े नाम, निरंकार देव सेवक की एक मशहूर कविता है, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने उसको बहुत अच्छे ढंग से एक बहुत सस्ती किताब में छापा है। वह देखो वह आता चूहा, आंखों को चमकाता चूहा, लंबी पूंछ लाता चूहा, बिल्ली से डर जाता चूहा, मक्खन बिस्किट खाता चूहा, ऐसी मक्खन रोटी खाता चूहा। पहली ही पंक्ति से वह देखो वह आता चूहा आपका एक एहसास पैदा करती है एक ऐसे जानवर का जो हम गौर से नहीं देखते, क्योंकि हम वैसे ही उससे इतनी नफरत करते हैं। आज के समय में तो चूहों का प्रवेश ही निषिद्ध है तमाम घरों में या किसी होटल में इत्यादि में, लेकिन बच्चे के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये छोटा सा प्राणी, और खासकर उसका बिल्ली से संबंध। ये शायद संसार भर में युद्धों की पहली झलक देता है बच्चों को। ये जो पहली पंक्ति है, इसको ही अगर आप गौर से देखें, वह देखो वह आता चूहा, तो आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने लाग लपेट छोड़कर, वाक चातुर्य छोड़कर एक सहज भाषा का आविष्कार किया। निरंकार देव सेवक की अनेक कविताओं में यह आविष्कार अपनी एक विशेष छटा के साथ दिखाई देता है। मुर्गी माँ घर से निकली, झोला ले बाजार चली, बच्चे बोले चे चे चे, मम्मा हम भी साथ चलें, ना कह के ही पता लग जाता है। अब आप चलिए किसी स्कूल में जहां मेरे जैसे लोगों की कोशिश से ये कविता पहुंच गई है, पढ़ाई जा रही है, कुछ हो रहा है, वहां पर हिंदी का शिक्षक इस कविता को पढ़ाता है। ये शब्द सुन के ही आप थोड़े से आतंकित हो गए होंगे। और उसके बाद याद कराता है, और फिर उसके बाद बच्चे उसको दोहराते हैं, और वहां इस कविता का ये स्वरूप बनता है। जो मूल कविता मैंने आपको थोड़ी सी सुनाई, वह देखो वह आता चूहा, मूछों में मुस्काता चूहा, स्कूल में जाके इसका क्या होगा? वह देखो वह आता चूहा, मूछों में मुस्काता चूहा। इस तरीके से वो चलती जाएगी, और उसकी व्यंजना, उसका रोमांच, सेवक जी का प्रयास, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा। रघुवीर सहाय ने लिखा भी है एक कविता में, हिंदी के अध्यापक, हाँ, मुझ पर कृपा करना। ये कहते हुए ये बात कुछ अंदर से एक ग्लानि भी पैदा होती है कि हमने अपनी भाषा की पढ़ाई का, इसको पढ़ाने वाले की समझ का कैसे अब तक स्तर सुधारने में संकोच किया या असमर्थता महसूस की। किसी और विषय को छोड़ दीजिए, भाषा केंद्रीय विषय है स्कूल का। आजकल तो उसको नींव बना दिया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी। हाँ, हम लोगों के समय में दीवार ही थी। जिस भी रूप में आप इसको देखना चाहें, सवाल यही उठता है कि इस घंटी में, स्कूल में जब ये घंटी बजती है हिंदी की, तो वो क्यों एक और ही आवरण में लिपट जाती है हमारी भाषा। व्यंजना के स्तर पर भी एकदम असफल हो जाती है, ध्वनि के स्तर पर भी उसमें कोई जान नहीं रहती। और कितनी ही पाठ्यपुस्तकों ने प्रयास किया है उसमें जान डालने का, लेकिन शिक्षक की समझ तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग ही बनाते हैं। और उन विभागों में जा करके आप कितने ही गर्म कपड़े पहन के जाएं, फिर भी आपको ठंड लगेगी, क्योंकि वहां पर वो ऊष्मा नहीं प्रवेश कर पाती जो कि आज इस हॉल में आप एक दूसरे को देखकर महसूस कर रहे होंगे। तो ये जो पूरा सिलसिला है, इसमें ये सभी संसार लिपटे हुए हैं जिनकी वजह से बच्चों तक पहुंचते पहुंचते अच्छी से अच्छी कविता, अच्छी से अच्छी कहानी भी कुछ और ही हो जाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है। ये एक कई स्तरों पर ऐसा भाव पैदा करती है जैसे कि जो आजकल अलाउड ही नहीं है बिल्कुल, कि आप एक नेगेटिव बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आपको तो बुलाया गया था प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन यही प्रश्न है, जब हम लोग आज बाल साहित्य पर खुले मन से बैठकर चर्चा कर रहे हैं, उत्सव का माहौल है, पराग का उत्सव, जो मानक तय कर रहा है और बहुत बड़ा काम कर रहा है कि हम किस आधार पर किताबों को चुनें, लाइब्रेरियों के लिए, स्कूलों के लिए, तमाम उन आधारों के चयन की चर्चा में हमें निश्चित रूप से आज अपने समाज और शिक्षा जगत की इन बहुत
बारीक कमज़ोरियों को, जो कि कमज़ोरियाँ कहने में भी बहुत एक प्रकार की व्याजस्तुति की स्थिति आ जाती है कि आप बहुत कम करके बता रहे हैं, ये दरअसल बड़ी गहरी बीमारियां हैं जिनसे हिंदी बाल साहित्य की पढ़ाई प्रभावित होती है। और कई बार अन्य भाषाओं के लोग भी बताते हैं कि स्कूल में कुछ खास नहीं देखना है, क्योंकि स्कूल में कुछ हो भी नहीं रहा है, जबकि स्कूल वो स्थान है जहां हम पढ़ना सिखाते हैं। पढ़ना ही वो जरिया है जिससे साहित्य किसी पाठक तक पहुंचता है। अगर उसने वो पढ़ना एक ऐसी परिस्थिति में सीखा, एक ऐसे व्यक्ति से सीखा जिसने पढ़ने को कुछ और ही बना दिया या पढ़ने के प्राण निकाल लिए, तो फिर हमारे लिए चिंता का विषय बनता है, क्योंकि हमारे पास तो जरिया शब्दों का ही है जिसके जरिए हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा और पढ़कर आनंद लेगा। साहित्य का दुनिया में और कोई उद्देश्य नहीं, भले कोई कितना आपको कन्विंस करे कि इससे देशभक्ति पैदा होती है या इससे ये मूल्य जीवित रहते हैं। हाँ, अगर आनंद उसमें नहीं है तो और किसी उद्देश्य की तो बात ही करना व्यर्थ है। और वो आनंद बच्चे अगर किसी चीज़ को बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार पढ़ना चाहते हैं, तो उसी से प्रमाणित हो जाता है कि हाँ, इस किताब में वो क्षमता है जो कि बच्चे को रमा सकती है। एक ही किताब वो 10 बार पढ़ता है अगर, तो ये अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि हाँ, उसने इसमें मज़ा लिया है। पर ये हमारी स्कूली व्यवस्था, बाजार में पहुंच सकने की हमारी एक तरह की मानसिक कुंठा या दुर्बलता, और आज के बचपन को घेरने वाली शक्तियों का दबाव, इन सब से मिलकर ये एक बीमारी पैदा होती है। तो इसलिए अंत में सबसे बड़ी आज की जो एक संकटपूर्ण स्थिति है उसका जिक्र करना जरूरी है कि आज शिक्षक, माता पिता, भाई बहन, इनकी पहुंच बच्चों तक है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की पहुंच हो चुकी है स्मार्टफोन के जरिए या इंटरनेट के और जो रास्ते हैं उनके जरिए। ये एक वास्तव में एक सांस्कृतिक आपातकाल है। कई देशों में इस आपातकाल को पहचाना गया है। हम प्रायः इतने छायावादी हो जाते हैं कि हम अपने देश का आपातकाल केवल 1975 में याद करते हैं। ये आपातकाल हमारे इर्द गिर्द है आज, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार देखें या संविधान को देखें, सभी में बात की गई है कि बच्चों को एक आयु तक आते आते सुरक्षित रखना, उनका बचपन बचाए रखना बड़ा ज़रूरी है। कैसे बचाया जाएगा वो बचपन जब ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे लोग सीधे उन तक पहुंच रहे हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने घर में एक घंटे के लिए भी, वो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या सीधे सीधे किसी कार्यक्रम के जरिए पहुंच रहे हैं। उनमें से बहुत सी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं। आपको आज ढेरों माता पिता मिल जाएंगे जो 1-2 साल के बच्चे के लिए भी स्मार्टफोन दे देते हैं। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का कानून पास हुआ। फ्रांस ने कई महीनों पहले स्कूल में स्मार्टफोन के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत से और देश तरह तरह से इस नए तरह के संकट से, इस संकट काल से जूझने के लिए भांति भांति के कानूनी, सामाजिक और अन्य प्रयास कर रहे हैं। बाल साहित्य इस संकट से निश्चित रूप से प्रभावित हो चुका है और होता रहेगा। कुछ वर्ष पहले तक ये बात होती थी। नेशनल बुक ट्रस्ट भी हम लोगों से पूछता था, हम लोग जो उसके लिए लिखते थे, कि क्या आप इसको ई बुक के रूप में लाना चाहेंगे। लगता था कि हाँ, इससे फैलेगी ये चीज़, बहुत फैलेगी। लेकिन ये एक दूसरे से अलग चीज़ें नहीं हैं। हमने जिस दुनिया को नहीं समझा है वो दुनिया देखते ही देखते हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। आखिरकार ऑनलाइन शिक्षा, जो कि अब सरकार ने भी अपना ली है और दिल्ली का वातावरण तो उसमें सहयोग देता ही रहता है, कि जैसे ही कोहरा हो या कि जो यहाँ का पर्यावरण का संकेत देने वाला 500 पे रुकने वाला स्केल है वो बढ़ता है, वैसे तुरंत शिक्षक से कहा जाता है कि भैया घर से पढ़ाओ, आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी जो कोविड काल में एक व्यवस्था बनी थी वो अब फैलती फूलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। उस संकट की पहचान
और उसको किसी प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास हमारे समाज में, देश में एकदम छोड़ दिया गया है। इस बात का हमारे प्रयास पर, जो कि आज इस उत्सव में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। इसको हम केवल साहित्यिक औजारों से दूर नहीं कर सकते। इस संकट को, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए हमें एकदम नए कोई तरीके सोचने होंगे और अपने दिमाग में बसी हुई ये छवियां कि जब रेल आई थी तो उसका भी विरोध हुआ था, जब टीका आया था तो उसका भी विरोध हुआ था, और अब जब ये नई टेक्नोलॉजी आई है इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए, विरोध नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो निरंतर विज्ञान की प्रगति का ही संकेत होती है। वो वाला विज्ञान जिसकी प्रगति लोगों के दिमाग से होती थी, अब थोड़ा सा पुरातनपंथी बन गया है। अब विज्ञान की तरक्की भी बहुत बड़े निवेश के सहारे ही होती है। निवेश तो पहले भी विज्ञान को हमेशा चाहिए होता था, पर ये जो टेक्नोलॉजी का मसला है ये विज्ञान से भी कहीं ज़्यादा जटिल है आज, और ख़ासकर बच्चों के संदर्भ में तो ये बेहद जटिल है। अगर मैं ये दावा करूं कि मैं इस संकट को समझ गया हूं या उसका खुलासा कर सकता हूं, तो ये भी एक मेरी ही अहंकार की एक मिसाल होगी। ऐसा है नहीं, हम में से कोई इस स्थिति के लिए ना तैयार था और ना अभी तक है। और ये संकट है भी इतना नया कि हम सब मिल करके इसके लिए बात करने का समय भी ठीक से नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि ये संकट है ही 25-30 साल का, कोई बहुत पुराना नहीं है। तो इसलिए इन तीनों संसारों का अगर एक साथ जिक्र करें तो उनके ऊपर आज इस समस्या का जो आतंक है वो हमारे लिए भी बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की दुनिया में वो आतंक कानूनी रूप से फैल रहा है। ये नहीं कि वो कहीं से जबरदस्ती हमला कर रहा है। और शिक्षा की दुनिया, बाजार की दुनिया, ये दोनों इस मामले में जुड़ गई हैं। सीधे सीधे बचपन उनकी पकड़ में है, और हम अगर उस बचपन को किसी प्रकार कुछ आनंदित करना चाहते हैं, उस आतंक से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमारा ये सोचना कि हम केवल अपने इस प्रयास में लगे रहकर कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक छायावादी, एक कल्पनाशील विचार है। इसका ज़रूर एक महत्व है, लेकिन हम सबको मिल करके जिस बड़े प्रयास को करना है, उस प्रयास की रूपरेखा भी हमें पहले तैयार करनी होगी। बहुत धन्यवाद।